ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੋਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂँਗਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂँਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਵੈਵਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1947 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ 1951 ਤੋਂ 1952 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਬਾय ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ 389 ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਸੀਗੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਅਲਾਟਡ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 296 ਸੀਗੀਆਂ, 296 ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਪੈਪਸੂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 93 ਸੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ 389 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ of princely state allotted in the proportion in the respective population। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ
अलग तो इन्होंने एक अपना क्या देता सीगा इलैक्टोरल वोट्स, मतलब कि एक कम्यूनिटी का आप कह सकते हैं जिमें आप कह सकते रिजर्वेशन दे दी सी। तो रिजर्वेशन का काम साडा उस समय का ही चलता आया अंग्रेजों के टाइम तो। जर्नल सीगे, जर्नल च मुस्लिम सिख नूं छड्ड के सारे सीगे, ठीक है, समझ आ गया। आगे चल गया, देखो हूँ, देखो हूँ की है मोर ओवर मैंबरस ऑफ इनडायरैक्टली इलैक्टेड। देखो आ ध्यान रखना, हूँ तुहानूं पेपर पूछे जाता कि किस तरह इलैक्टेड किए थे, डायरैक्टली किए थे, इनडायरैक्टली इलैक्टेड किए थे। हूँ मैं मतलब समझाता कि डायरैक्टली इलैक्टेड होना क्या होंदा और इनडायरैक्टली इलैक्टेड होना क्या होंदा। मान लो जिमें हुण असीं वोटां पाईआं, ठीक है, हूँ जिमें सेंटर में मोदी है, ठीक है, मोदी साहब आ, हुण असीं क्या करिया कि असीं वोटिंग की। वोटिंग करन तो बाद असीं किन्हां नूं चुनिया जो साडे रिप्रजेंटेशन सीगे जिमें कि अलग अलग स्टेट, जिमें कि भगवंत मान हो गए संगरूर तो ना, ऐदा बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स तो समझ लो एक MP चुने गए, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, ठीक है। हुण ये अगे जाके क्या करते हैं, ये MP अगे जाके अपनी गौरमेंट नूं चुनते हैं, मतलब कि अगे जाके ये सारे MP किनू चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर नूं चुनते हैं, समझ गए। हुण इनू क्या कहांगे, इनू बोलोगे आप इनडायरैक्टली इलैक्शन। क्यों? क्योंकि असी तो चुनिया सी भगवंत मान नूं, भगवंत मान वर्गे होर स्टेटां ने भी अपने अपने MP चुने, पर उन्होंने अगे प्राइम मिनिस्टर नूं चुनिया। वो साडे हाथ तो नहीं सी ना प्राइम मिनिस्टर चुनना, वो तो उन्होंने हाथ से है। तुसीं डायरैक्ट मोदी ने थोड़ा वोटां पाइयां, तुसीं तां वोट्स MPs नूं पाइयां, उन्होंने MPs ने अगे मोदी ने चुनिया, समझ गए। हुण जिवें आपां नैक्सट चलीए कि डायरैक्टली क्या होंदा। डायरैक्टली होंदा मतलब जिवें अपना राष्ट्रपति चुनिया जाता, सिर्फ अपने MP MLA ही उन्होंने चुन लेंदे आ, समझ आ गया। बस उसी ये ध्यान रखना। तो उस समय भी क्या होया सी, जिहड़े मैंबर सी वो क्या सीगे, इन डायरैक्टली इलैक्टेड सी। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा जिहा फोन अर्जेंट फोन आ गया सी। चलो अगे चलते आप। मैंबर्स वर इनडायरैक्टली इलैक्टेड सीगे, ठीक है, हर प्रोविंसिस दे विच। ओके, रिप्रजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलैक्टेड बाय मैंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंस लेजिस्लेचर। तो जिहड़ी उस समय वोटिंग हुई सी, आ देखो, वोटिंग वाज टू बाय द मैथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस वोट के नाल होए सी। तुसीं उहदा ध्यान रखना है, ठीक है, एक मिनट मैं रेज करदा। तुसीं उहदा ध्यान रखना है कि जिहड़ा वोटिंग हुई सी वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नाल होई सी। देखो भाई, तुसीं ना अपने पॉइंट्स नूं नोट करते जाओ, ठीक है, किहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट आ। मैं तुहानूं टिक दसदा, देखो नोट्स तुहानूं मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो नोट्स नूं पूरा पढ़ के तुहानूं समझ नहीं आना है डायरैक्टली। तुहानूं हर चीज़ ध्यान नाल करनी पैनी है, नाले लूसन लसन करके कोई फायदा नहीं है। हर चीज़ वास्ते तुसीं इन्हां चीज़ नूं फॉलो करो, इस तो बाद जाएगा ही नहीं। अगर यार तुसीं इहनूं करके ना PCS दे लो भावें, तां भी तुहाडा क्लीयर है, ठीक है ना, समझ गए। हुण देखो उरे अंडरलाइन किया हुआ है, रिप्रजेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट बाय नॉमिनेट। देखो उरे क्या है, देखो उरे नॉमिनेटेड आ गया। हुण क्वेश्चन च फसना नहीं पेपर च, जेड़े तां जिथे जिथे अंग्रेज़ों का राज सीगा उत्थे तां लोग इनडायरैक्टली इलैक्टेड होए, पर जिथे जिथे महाराजियां का राज सी, प्रिंसली स्टेट सीगियां, उत्थे लोग नॉमिनेट किए, मतलब चुने, डायरैक्ट चुन ले, मतलब आ जा बई तू, आया तू चुनिया,
ठीक है। तो अपना एंड च कनक्लूजन की निकलिया, इत्थे कनक्लूजन की निकलिया कि जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन आ असैंबली आ वो क्या है, वो की आ इलैक्टड भी है और नॉमीनेटेड भी है। समझ गए, ये तुसीं याद रखना। हुण देखो इत्थे कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के इलैक्शन जोड़े आ जुलाई अगस्त 1946 ये थोड़ा याद करने की लोड़ नहीं है कदों होए सी इलैक्शन। तुसीं इस मेन याद ये रखना कि एक मिनट थोड़ा जिहा अगे चलते, थोड़ा कुछ याद करने की लोड़ नहीं, तुसीं मेन याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के मैंबर किहड़े सी। तुसीं ना हुण देखो इस मैंबर किहड़े सी ये याद करने की लोड़ नहीं हैगी, किहड़े नहीं सी याद कर लो। इस महात्मा गांधी भी नहीं सीगे ना MA जिन्ना सीगे, जिन्ना वो जिन्हें पाकिस्तान बनाने की बहुत सब तो हथ इसका ही सीगा पाकिस्तान बनाने जिन्ना का, ठीक है। सो MA जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोने जेड़े नहीं सी। थोड़ा ऑप्शन है ना, अगर तुहानूं पुछया गया किहड़े मैंबर, तुहानूं दोनों एक ऑप्शन दिता होगा जो गलत होगा, तुसीं बस ध्यान रखना, ठीक है। ओके अगे चलते आपां। अगे देखो हुण देखो इत्थे हुण क्वेश्चन देखो इत्थों स्टार्ट होंदे आ। जिहड़ी असैंबली की फस्ट मीटिंग सी, पुछया जांदा कि पहली मीटिंग कदों हुई सी, 9 दिसंबर 1946 एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर च आया, हद तो वध ध्यान रखना इस गल का, ठीक है। 211 मैंबर नहीं याद करने की लोड़ हैगी, ठीक है। प्रिंस स्टेट हुआ स्टेट ग्रेजुअली ज्वाइंट नहीं, ये भी लोड़ नहीं हैगी। आ याद करना डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा ओल्डेस्ट मैंबर वाज इलैक्टेड एज टैंपररी प्रेजिडेंट ऑफ असैंबली। याद रखना ये टैंपररी प्रेजिडेंट सीगे। दूसरी गल ये पूछा जाता है कई बार कि डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा जिहड़े वो किस किस देश की प्रैक्टिस नूं फॉलो करते सी, ते फ्रांस नूं फॉलो करते सी, फ्रेंच प्रैक्टिस। जिवें फ्रेंच रैवोल्यूशन हुई, तुसीं सब ने पढ़िया ही होना छोटी क्लासिस में, फ्रेंच रैवोल्यूशन पढ़िया होना सारे ने, इक्वैलिटी लिबर्टी ये सारा सानूं उत्थे तो आइडिया मिले ना। अज देश में इक्वैलिटी क्यों आ, क्योंकि फ्रेंच रैवोल्यूशन तो सानूं मिलिया सीगा सब कुछ, ठीक है। ओके एक है टैंपररी प्रेजिडेंट, याद रखना टैंपररी प्रेजिडेंट, ठीक है। उस तो बाद किहड़ी डेट नूं परमानेंट चुनिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिहड़े सीगे ये परमानेंट प्रेजिडेंट सी। देखो साडे देश के पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद आ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ते साडा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के परमानेंट नॉट टैंपररी, टैंपररी डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा सीगे, परमानेंट कौन आ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो HC मुखर्जी ये थोड़े वाइस प्रेजिडेंट सीगे। ओके एक आ चीज़ भी बहुत सारे पेपर च पूछी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन सीगे, कौन सी सर BN राव। ये तुसी याद रखना, इन्हों रट लेना है, ठीक है। थानू तो बाहर एक भी चीज़ नहीं जाऊँगी, मेरे ना शर्त लगा लो, ठीक है। आ दूसरी गल एक क्वेश्चन होर बनता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली नूं किन्ने दिन लगे सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वास्ते। टोटल 11 सैशन होए सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये तुसी याद रखना, ठीक है। तो फाइनल कदों होया सी 24 जनवरी 1950 नूं। देखो 24 जनवरी 1950 होया, लेकिन 26 नूं कमेंस हो गया। अगर पेपर आंदा बई बनया किदन सी तां तुसीं लिखोगे 24 जनवरी 1950। अगर पुछदे कमेंस मतलब कदों शुरू होया सी लागू होना, तो 26 जनवरी 1950। तुहानूं पता ही गणतंत्र दिवस उस दिन कमेंस होया सी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अपना संविधान उस दिन शुरू होया सी, लेकिन बन गया सी 24 जनवरी 1950 नूं, ठीक है। हुण इच देखो मोरे लिखा होया कि पहले जनरल इलैक्शन कदों होए सी 1951 ते 1952। ये तुसीं याद रखना, ये बहुत बार पेपर जो क्वेश्चन आया। हुण ASP का एग्जाम होया सी पिछले पुलिस का, उस भी क्वेश्चन आया सी फर्स्ट जनरल इलैक्शन कदों होए सी 1951 1952, ठीक है। आया समझ। इस तो बाद तुहानूं कुछ नहीं चाहूँगा, अगे चलो। इधर तुहानूं कंटेंट किते भी नहीं मिलना यार, बहुत वधिया कंटेंट मैं तुहानूं दे रहा, ठीक है। सिर्फ मैं नीडी बच्चों की हैल्प करना चाहता, और कोई इच मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। हुण देखो 1/2 फंक्शन उरे क्यों इधर लिखा, जिवें तुहानूं पहला ही स्टार्टिंग मैंशन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली मिली बनी उस समय की होया कि इलैक्शन तो 1951-52 होए, जिवें तुहानूं सब नूं दसता होया मैं। तो उदों पहला 1947 तो 1952 तक तो किसी ने कोई रास्ता किया है ना कोई लॉ तो बनाए होने आ यार। जो तो कोई लॉ ना बनावे, मैं कहना दुनिया तो भेड़ चाले बन जाए दुनिया की, एक दूसरे मार दे रातों रात जे लॉ ना हो ना। सो दूजे ने पर गल हुण इत्थे आ गई कि क्या क्या करता, तो उत्थे 2 फंक्शनस मिलते थे। हुण सुनो
जिस दिन ਤਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हुंदा सीगा उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दा चेयरपर्सन डॉक्टर राजिंद्रा प्रसाद हुंदे सी। लेकिन जदों कोई लॉ बनाना हुंदा सीगा तां उस समय उन्होंने चेयर कौन करता सी, हाले उरे लिखा हुआ मैं GV मावलंकर। ये तुसी एक गल होर याद रखनी है, साडे इंडिया दे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा भी GV मावलंकर जी होए है। ध्यान रखना इसका, फर्स्ट स्पीकर अपनी कॉपी का नोट करी जाओ, ठीक है। नाल नाल मैं स्टैटिक जी के भी नाल नाल वेड़ देनी है, ठीक है। तो तुसीं समझ गए दो फंक्शन सीगे कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दे। पहला फंक्शन सीगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूजा फंक्शन सीगा लॉ नूं बनाना, जो कि 1951-52 दे पहला सीगे, ठीक है। हुण GV मावलंकर जी कदों हुंदे सी, जदों लॉ बनाना हुंदा सी। जदों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हुंदा सी उस समय डॉक्टर राजिंद्रा प्रसाद जी चेयर करते सी। और मैं सब कुछ लिखा है, तुसीं पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी यार देखो, जिन्हों पंजाबी च नोट्स चाहिए ना यार, हूँ पंजाबी तो मैं कर दूँ अरेंज, कोई चक्कर नहीं। तुसीं एक बार उरे तो पढ़ लो, मैं सारा कुछ तुहानूं समझा रहा होया, तुसीं बस मेन पॉइंट नूं नोट करी जाओ, टिक कर लो। सारा पढ़ने की तुहानूं बिल्कुल लोड़ नहीं है, ठीक है। तुहानूं फैक्ट ही आने हैं। एडिशनल फंक्शन क्या सीगे कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग ऑर्डनरी लॉज, बहुत सारे ने ऑर्डनरी लॉज बनाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ऑल्सो परफॉर्म्ड, क्या क्या करिया इन्होंने, वो डिटेल जो इन्होंने की है कदों, जदों इलैक्शन तो पहला, है ना। किहड़े फंक्शन किए देखो, पहला कॉमनवैल्थ नूं रैटीफाइड किया 1949 के, याद रखना बहुत बार पेपर पूछा होया। 1949 कॉमनवैल्थ की है, जेड़े जेड़े ब्रिटिशिज दे राज दे अंदर सीगे ना देश, वो उन्होंने कॉमनवैल्थ मैंबरशिप लिती हुई सी, ठीक है, आज़ादी तो बाद। दूजा नैशनल फ्लैग कदों अडॉप्ट किया, फ्लैग अपना नैशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। नैशनल एंथम कदों किया 24 जनवरी 1950। ये डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर च, ध्यान रखना है। नैशनल सॉन्ग कदों किया 24 जनवरी 1950। तुसीं एक गल नोट की है, सिर्फ नैशनल फ्लैग असी 22 जुलाई 1947 नूं ही अडॉप्ट कर लिया सी, बाकी 24 जनवरी। इलैक्टेड राजिंद्रा प्रसाद फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड 24 जनवरी 1950। कॉमनवैल्थ 1949, ठीक है। आया समझ, ये तुसीं याद रखनी है। अगे देखो, अगे की है कि कुछ थोड़ी कमेटीज़ नहीं, तुसीं याद कर लेना सारी कमेटीज़ नूं, ये तुसीं खुद याद करनी। इकट्ठियां बहुत ही इंपॉर्टेंट आ कमेटीज़, तुहानूं पेपर डायरैक्टली क्वेश्चन आता किहड़ी कमेटी किहदे कोल सीगी, इहनूं ध्यान नाल कर लेना उसे, ठीक है। आगे समझ। अगे देखो, हुण जदों इनैक्ट होया सी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय कदों अडॉप्ट कदों होया सी 26 जनवरी 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किदन होया सी 26 जनवरी 1949 उस किन्ने क्या क्या सी, प्रीएम्बल सीगा, 395 आर्टिकल सीगे, 8 शेड्यूल सीगा। अज 12 शेड्यूल हो गए हुए, तो 495 कुछ इत्थे तक थोड़े क्या हो आर्टिकल पहुँच चुके, जिवें तुहानूं पता है, ठीक है। ओके, हुण देखो इत्थे की आ रहा, की कीता सीगा उस समय, ये तुहानूं कुछ पढ़न की लोड़ नहीं है कि ये सारा कुछ एवें ही है। तुहानूं कुछ उरे तुसीं इन्ना ही पढ़ना भी किन्ने आर्टिकल सीगे ते कदों अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 नूं। कमैंस कदों होया 26 जनवरी 1950 नूं, ते अडॉप्ट कदों किया गया 26 जनवरी 1949 नूं, ठीक है। आया समझ। हुण देखो, सो उरे मैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई पेपर च बहुत बार पूछी जाती है यार। पता क्या, हूँ देखो क्यों किया गया कि 26 जनवरी ही क्यों डेट रखी गई कि इस दिन ये सब कुछ करना। देखो होया कि हिस्टरी में कि 1929 के ना लाहौर का सैशन होया सी, ठीक है, जिहदे जवाहर लाल नेहरू जी साडे प्रैजिडेंट बने सी। उत्थे उस सैशन के आपां जिहड़ी पूर्ण स्वराज का वादा किया सी अपने नाल कि सानू फुली इंडिपेंडेंस चाहिए। देखो पहला तो ऐ सीगा कि असीं ब्रिटिशिज के अंडर ही काम करांगे, जिवें अज की डेट के आस्ट्रेलिया है। आस्ट्रेलिया किस दे अंडर आ, ब्रिटिशिज के अंडर अज भी है। जो लॉ ब्रिटिशिज के यूके च बनते हैं वो लॉ उत्थे भी बनते हैं, ठीक है। इनू आप डोमीनियन स्टेटस कहते हैं, जिस गौरमेंट तो अपनी हो सकती, लेकिन आप जब भी कोई लॉ लू पास करना तो सानू रैटीफाइड जरूर कराना पैंदा, कित्थों यूके तो आस्ट्रेलिया नूं कराना पैंदा, ठीक है।
सो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या सी, ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੈਪੀ ਸਟੱਡੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।